Okay, so in previous class we have studied about operations on signals, and in that case we have studied about scaling, shifting, multiplier as well as addition. Now today I will discuss about how the signal has to be imposed in a system. Okay, and before that, since the entire subject is related to the digital signal processing, that means whatever the system has been used, that must support the digital signal. And as you know that the signal which is available, all signals are analog signal. So first of all, we need to convert the analog signal into its corresponding digital signal. And for this purpose, we have to learn about we have to learn about sampling. So can anybody explain what do you mean by sampling? Because sampling already I had told in your previous semester. So can you share about your thoughts regarding sampling? That means sampling होता क्या है? What do you mean by sampling? What do you mean by sampling? होता कैसे ये sampling? Or when we will go for sampling? Anyone, anyone? Can you explain? Am I audible now? Am I audible? Am I audible? Yes or no? So if I am audible, then tell me what do you think about the name sampling, or what do you think about sampling? ये sampling होता क्या है? From your previous semester experience, ये sampling होता क्या है? Sir, continuous time signal in a discrete signal. Okay, good, very good. So this is the technical term. That is, whenever I have to convert the continuous time signal into its corresponding discrete signal, then it is known as sampling. तो देखा जाए तो हम कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को डिस्क्रिटाइज कर रहे हैं, तो डिस्क्रिटाइज करने का पहला जो स्टेप है दैट इज सैम्पलिंग. एंड वन मोर थिंग यू हैव टू मेंशन, by keeping all the properties of the continuous signal in that discrete signal. ये मेंशन कर देना, ये मेंशन कर दोगे तो ये एग्जांपल डेफिनेशन एकदम परफेक्ट हो जाएगा. सपोज दिस इज अ सिग्नल, this is a continuous time signal, that is continuous time signal. now इसी सिग्नल को अगर हम डिस्क्रिटाइज करेंगे, तो कंटिन्यूअस मतलब ईच एंड एवरी इंस्टेंट हैज इट्स वैल्यू. डिस्क्रिटाइज करेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस. It will look like this. So in this continuous time signal, this is a sinusoidal wave. In this discrete time signal also it will represent the sinusoidal wave. ठीक है? So that is discrete time signal. The
Transformation from continuous time signal to discrete time signal is known as sampling by keeping all the properties of the continuous time signal into that discrete time signal. ठीक है. सो नाउ सैम्पलिंग का एक क्राइटेरिया होता है. हम कभी कहीं से भी किसी को भी कोई भी सिग्नल को सैंपल नहीं कर सकते. वी हैव टू सैंपल और वी मस्ट सैंपल दो सिग्नल which will qualify the certain amount of frequency. That is, if the maximum frequency of this signal is fm, इस fm का सपोज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देना ठीक नहीं होगा क्योंकि एम्पलीट्यूड को मेजर करेगा. ठीक है, तो इसको हम अलग से लिख रहे हैं. सपोज इफ fm the maximum frequency of the signal, then I have to sample the signal. Sample frequency I have to choose in such a way that it has to follow this relation, or it must follow this relation, that is fs must be greater than equal to 2fm. so इस सैंपल सिग्नल का फ्रीक्वेंसी को हम तभी इसको सैंपल कर पाएंगे या इसको इस तरह से हम लोग सैंपल करेंगे जहां पे ये सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन ट्वाइस एफ. ये रिलेशन को फुलफिल करेगा तभी हम उसको सैंपल सिग्नल कह सकेंगे या हम उसको उस फ्रीक्वेंसी में सैंपल कर सकेंगे. ठीक है, सो दैट इज द ऑल अबाउट योर conversion from continuous time signal to discrete time signal, the very first step. so अगर इसको हम सिस्टम में पुट करें, ठीक है, if I will convert it, I will convert it into the system. तो सिस्टम क्या होता है? Anybody? What do you mean by system? What do you mean by system? What do you mean by system? एक सिस्टम हम कब कहेंगे कि ये एक सिस्टम कह सकते हैं इसको? Anyone? System? When we can say that it is known as system. किसी भी एक अरेंजमेंट को हम सिस्टम कब कहेंगे? Anyone? What do you mean by system? Sir, system in digital signal, sir. कोई भी सिग्नल. What is नॉर्मल सिस्टम का मतलब हम क्या कह सकते हैं? sir in sequence wise or step wise? स्टेप वाइज. और मेन वाइटल चीज क्या है? What, sir? मेन वाइटल चीज एक सिस्टम के अंदर जो मेन चीज है वो तुम्हारे अभी जो जहाँ पे बैठे हो, ठीक है, वहां पे तुम इलेक्ट्रिक सिस्टम यूज कर रहे हो. यस और नो? Yes, sir. हाँ. कौन? देखो इलेक्ट्रिक सिस्टम में तुम क्या करते हो, एक इनपुट देते हो, दैट इज द पावर सप्लाई, और उसके थ्रू तुमको क्या मिलता है? आउटपुट. आउटपुट किससे मिलता है? आइदर फैन, लाइट्स, टेलीविजन सेट, रेफ्रिजरेटर, व्हाटएवर इट. सो सिस्टम जनरली डिफाइंड एज an arrangement which will give you a particular output with respect to your input. Okay, or I can say this is an arrangement through which we will get the output.
ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इनपुट। ये नहीं कि तुम 220 वोल्ट का सप्लाई दो इनपुट और तुम्हें मिले 10 वोल्ट या 5 वोल्ट सप्लाई फैन में मिले, ठीक है। सो द आउटपुट मस्ट बी एज पर योर इनपुट और फ्रॉम अ पर्टिकुलर इनपुट। सो बेसिकली अगर हम सिस्टम को देखेंगे, if we will go for system, okay. So if we will go for system, system is an arrangement. So arrangement, this is an arrangement, and this arrangement only will be known as system if and only if it will give an output of a particular input। ठीक है, एक इनपुट देंगे, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट जिससे हमको मिलेगा दैट इज नोन एज सिस्टम। अगर इनपुट दे रहे हैं आउटपुट नहीं मिल रहा है तो हम उसको सिस्टम नहीं कहेंगे। तो सिस्टम में दो चीज वाइटल है, इनपुट एज वेल एज आउटपुट। सो इफ सिस्टम, इसको हम अगर ब्लॉक डायग्राम में दिखाएंगे, जनरल फॉर्म दैट इज इनपुट it is faced to an arrangement which is known as system, and the system will give you output according to your input. So this is your system, this is the basic diagram of system। okay, so now सिंस मेरा टोटल जो मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, दिस इज ऑल अबाउट योर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। सो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए मेरे पास क्या है, मेरे पास एनालॉग सिग्नल है दैट इज कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, उसको हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट कर रहे थ्रू सैम्पलर और थ्रू सैम्पलिंग प्रोसेस। सैम्पलर जो प्रोसेस यूज करता है दैट इज नोन एज सैम्पलिंग। थ्रू सैम्पलिंग उसको हम डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। नाउ दैट डिस्क्रीट सिग्नल हैज टू बी फेस्ड इन एन अरेंजमेंट, ठीक है। और जो सिस्टम मुझे आउटपुट देता है दैट विल बी एज पर योर इनपुट, दैट इज आउटपुट डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। बिकॉज मेरा इनपुट डिस्क्रीट है तो आउटपुट ऑब्वियसली डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आएगा। So that system, the system which will operate on discrete signal, that means input is discrete, output is also discrete, the system is known as discrete time system। discrete time system, ठीक है। now to define a discrete time system, ठीक है, मैं क्या कहूंगा, to define a discrete time system, discrete time system, so how it will be defined, it is a device that operates on, किसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है, इनपुट कौन सा सिग्नल है, दैट इज डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ऑन अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एज एन इनपुट। और इनपुट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनपुट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स ऑफ एन, लेट इट बी, ठीक है, एक्स ऑफ एन, एंड the device will produce the corresponding discrete time signal as an output, that is y of n। So then the system is known as your discrete time system।
सो ये याद रखना, ठीक है। इट इज अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स ऑन अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एज एन इनपुट and the device will produce the corresponding discrete time signal as an output. So यहाँ पे क्या होगा, हम ये सिस्टम को कैसे डिजाइन कर सकते हैं, नॉर्मल डिजाइन, नॉर्मल डिजाइन सिस्टम, नॉर्मल डिजाइन क्या होगा, दैट इज सपोज दिस इज एन इनपुट and I have to give the input to a corresponding and then I will take the output. Okay. Okay. So now this is input, input that is x of n. This is output that is y of n, and this is your system. And which type of system? Discrete system. Discrete system. Because यहाँ पे मेरा discrete time signal output जा रहा है and input जा रहा है and I will get discrete time signal as the output. So this is all about your system. Now depending on the signal, क्योंकि यहाँ पे input signal कौन सा है, that is discrete time signal, as well as मेरा output कौन सा है, discrete time signal. So मेरा output किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, input के ऊपर डिपेंड कर रहा है. So again in from previous class we have seen that different kind of signals are there, that is periodic signal, aperiodic signal, causal, non-causal, static, dynamic, linear, non-linear. So depending upon the signal, the system also be classified into various category, and that will be our next topic, that is that is classification of discrete time systems. ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन कैसे होता है डिस्क्रीट टाइम सिस्टम का. सो अगर हम डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को क्लासिफाई करेंगे, सो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ discrete time system according to the input, as per input. So 1, 2, that is the third one, 4, 5th and 6th. Okay. So this is the 6 type of system. Now we will see what are those systems. So first one is, the very first one is your static and dynamic system. That is change कर देता हूँ. ठीक है. So static and dynamic
system. Second one is causal and non-causal system. Causal and non-causal system. Third one is linear and non-linear system. Linear and non-linear system. Okay. Next is time variant and time invariant system. Invariant system. Fifth one is FIR and IIR system. Stable it is stable and unstable system. So these are the 6 types of systems which we have to use basically. ठीक है, basically मतलब maximum cases, in more than 90% cases all the systems comes under this and few systems are from special condition. ठीक है, वो हम लोगों का point of discussion नहीं है, so उधर हम नहीं जाएंगे. ठीक है, so now move to the very first topic, that is move to the very first topic. That is पहला टॉपिक क्या है मेरा? To the very first topic, that is point number 1 is static and dynamic system. Okay. Static and dynamic system. So suppose static system and dynamic system. Okay. Have you any idea about static system and dynamic system? Which systems are known as static system and which systems are known as dynamic system? Have you any idea? Static system and dynamic system. Static system क्या होता है and dynamic system क्या होता है? Have you any idea? Anyone? Any idea? Static कौन सा होता है and dynamic कौन सा होता है? Have you any idea? What do you mean by static signal and what do you mean by dynamic signal? Any idea? स्टैटिक सिग्नल क्या होता है, डायनामिक सिग्नल क्या होता है? Sir, statics means that in one time we have to give the input, and that time only that the input will come. Okay. That means present value. ठीक है, one time. And dynamics motion in motion, sir. हाँ, हेलो Hello. हाँ, बोलो क्या बोल रही थी? Sir, statics means at the instant time we give the input.
At that Exactly, time only we get the exactly, same time. exactly, perfect. That is And stat. dynamic means in motion, sir. Huh, exactly. Occurs in motion. Okay, exactly. Very good. So static means एट दैट टाइम, जैसा तुम लोगों का ओटीपी, ठीक है, वो ओटीपी क्या होता है, स्टैटिक कोड होता है। एट दैट टाइम यू विल गेट द ओटीपी आफ्टर 2 or 3 मिनट्स, ठीक है, वो ओटीपी इनवैलिड हो जाता है। सो प्रेजेंट स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज स्टैटिक मींस प्रेजेंट स्टेट। और प्रेजेंट स्टेट कब होगा, कोई भी चीज प्रेजेंट स्टेट में कब हम उसको कंसीडर करेंगे, जब उसके पास कोई मेमोरी नहीं होगा। देखो कोई ओटीपी सेव का ऑप्शन नहीं होता है, पासवर्ड सेव का ऑप्शन रहता है, बट ओटीपी सेव का ऑप्शन नहीं आता है। सो स्टैटिक मींस स्टैटिक सिस्टम इज कॉल्ड अ मेमोरी लेस सिस्टम, ठीक है, बिकॉज इट्स thus in this system the signal output signal always depends on the instant, particular instant. That means the output is totally independent of past value as well as future value of the signal. So static में हम लोग क्या लिखेंगे, what we will write, that static system is, first one is memoryless, memoryless। अगर सिस्टम मेमोरीलेस हो रहा है, दैट मींस इट विल ओनली डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनपुट सिग्नल, नॉट द फ्यूचर एंड पास्ट वैल्यू। सो अ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, ठीक है, इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, इसको अगर हम डिफाइन करेंगे, अ सिस्टम is known as static system if it is memoryless, means its output is independent on past and future value and only depends upon the present value. That system is known as static system. Okay, so this is the definition of static system. This is the normal definition of static system, ठीक है। So that means suppose मैं एक signal दे रहा हूँ, so I am giving you a signal that is x of n equal to suppose a x of n। सो यहाँ पे देखो n का वैल्यू जो है n इक्वल टू 0, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू फॉर n इक्वल टू 0। सो x ऑफ 0 इक्वल टू a ऑफ x ऑफ 0, ये इनपुट है, दिस इज द इनपुट फॉर द सिस्टम। दैट मींस यहाँ पे तुम्हारा x ऑफ 0 जा रहा है और मुझे दे रहा है ये सिस्टम, दैट इज सिस्टम। यहाँ से मुझे मिल रहा है a ऑफ x ऑफ 0। सो x ऑफ 0 इज द input and I am getting the output with respect to this particular input. So x of 0 के ऊपर ही depend कर रहा है। x of 1 करो तो a into x of 1, that is the particular instant, is the output is totally dependent on the present value, not the past or future value. So this is known as static signal system. Now dynamic system. So dynamic system को हम कैसे लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, जस्ट इसका उल्टा। A system is known as dynamic system if it is, और इसको लिखते हैं it has memory। Instead of memoryless I am using memory। That means its output is dependent on
past, present and future values. Okay, then the system is known as this. Then that system is known as dynamic system. System is known as dynamic system. Okay. So this is, that means सिस्टम के पास एक मेमोरी है, ठीक है, जैसे तुम्हारा पासवर्ड, जीमेल का पासवर्ड बोलो, जो भी बोलो तुम, एट ए टाइम सपोज आज मैं सेव कर रहा हूँ अपने मोबाइल में, परसों या उसके बाद आफ्टर फ्यू डेज व्हेनेवर आई विल गॉट दैट पासवर्ड फ्रॉम माय मोबाइल फोन, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन माय पास्ट वैल्यू, कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट सेव किया हुआ वैल्यू को मुझे दिखा रहा है, दैट इज पास्ट डायनामिक सिस्टम। नेक्स्ट इज अपकमिंग, फ्यूचर, जैसे तुम्हारा सपोज वेदर रिपोर्ट, ठीक है, देखोगे नेक्स्ट 7 डेज का वेदर फोरकास्टिंग इज अवेलेबल ऑन नेट। नाउ ये फोरकास्टिंग, अपकमिंग जो एनालिसिस है उसको क्या कहते हैं, फ्यूचर वैल्यू, के आज वेडनेसडे है, फ्राइडे का टेम्परेचर कितना होगा, यू कैन एक्सेस फ्रॉम द मोबाइल फोन, सो दैट इज द फ्यूचर वैल्यू। सो सपोज द सिस्टम इज, let it be x of n equal to x of n equal to, let it be x of n minus 1 plus x of n square, ये एक सिस्टम। नाउ सपोज द प्रेजेंट वैल्यू इज 0, प्रेजेंट वैल्यू इज 0, suppose present value is 0, that is at n equal to 0, so x of 0 will become x of 0 minus 1 plus x of 0 square, so it will gives you x of minus 1 plus x of 0। so अगर हम इसको सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट स्टेट अगर n इक्वल टू 0 को पकड़ के, तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, दैट इज x ऑफ 0 मेरा इनपुट, ये सिस्टम है, दैट इज सिस्टम, एंड द सिस्टम विल गिव्स यू द आउटपुट x ऑफ माइनस 1 प्लस x ऑफ 0। सो देखो अभी प्रेजेंट वैल्यू कितना है, x ऑफ 0, मेरा ये जो आउटपुट है x ऑफ 0 के ऊपर डिपेंड करता है, एज वेल एज x ऑफ माइनस 1, दैट इज द पास्ट वैल्यू, 0 से पहले माइनस 1 आता है, सो इट इज डिपेंडेंट ऑन द पास्ट वैल्यू as well as the present value। Now again suppose x of n at n equal to 2, that is the present value is 2, so now x of 2 becomes x of 2 minus 1 plus x of 2 square, so it will gives you x of 1 plus x of 4। so now if I will represent it by a system, so system, मेरा इक्वेशन क्या है, x of 2 that is the present value, next is I am getting x of 1 plus x of 4। so see यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट क्या है, x of 2, मुझे क्या मिल रहा है, x of 1, 2 से पहले 1 आता है, तो दिस इज द पास्ट वैल्यू, एज वेल एज x of 4, x of 4 2 के बाद आता है, दैट इज द फ्यूचर वैल्यू। so this kind of system is known as dynamic system। okay, so now I am giving you a equation in पोल, ठीक है, मैं पोल में दे रहा हूं, just by seeing the equation answer me। okay, मैं एक इक्वेशन दे रहा हूं, y of n equal to x of n plus x square n, ठीक है, ये सिस्टम मुझे बताओ डायनामिक है, डायनामिक या स्टैटिक।
स्टैटिक। ठीक है, ये सिस्टम डायनामिक है या स्टैटिक है। 30 सेकंड का टाइम है। ठीक है, पोल शुरू हो रहा है। जस्ट इक्वेशन को देख के एंड टेक एक्स ऑफ एन एट 0, एट 1, एट 2। वहां पे y ऑफ n क्या आएगा? नो, मैं रीजन बता रहा हूं। दैट सिस्टम इज स्टैटिक वन, नॉट डायनामिक। सो क्वेश्चन क्या था? यहाँ पे एक्स ऑफ ये राइटिंग फॉर्मेट दैट इज, ये आउटपुट है, तो आउटपुट को दूसरा एक पैरामीटर से हम कनेक्ट करते हैं एक्स डैश से। ठीक है, और इसको हम आउटपुट को एक्स डैश एन, यहाँ पे भी एक्स डैश एन, एक्स डैश एन, एक्स डैश एन। नाउ कम टू द क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन में आ रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था y ऑफ n इक्वल टू एक्स ऑफ n प्लस एक्स स्क्वायर एन। ठीक है, सोल्यूशन। ध्यान से देखना कहां पे तुम लोगों का गलती हुआ है। सपोज प्रेजेंट स्टेट इज n इक्वल टू 0, सो y ऑफ 0 इक्वल टू एक्स ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर 0, एन का वैल्यू 0। ठीक है, तो ये देखो एक्स ऑफ 0 प्रेजेंट वैल्यू, एक्स ऑफ 0 का स्क्वायर, ये भी प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ एट एन इक्वल टू 1, y ऑफ 1 इक्वल टू एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1। यहाँ पे भी देखो 1 है प्रेजेंट वैल्यू, सो यहाँ भी एक्स ऑफ 1 है, एक्स ऑफ 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट इज at n equal to 2, so y of 2 equal to x of 2 plus x square 2, that is x of 2 में जो वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू उसका स्क्वायर है, ना ही ये फ्यूचर वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना ही ये पास्ट वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मुझे मतलब है n का वैल्यू से, एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो या सिंपल एक्स हो, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है। मेन है n का वैल्यू चेंज हो रहा है कि नहीं। So that means since the in three conditions all the values, output values is dependent on the present value, that is 2, यहाँ पे भी 0, ठीक है, यहाँ पे भी 1, इसके प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, नॉट ऑन द पास्ट और फ्यूचर वैल्यू। द सो आई कैन से द सिस्टम इज स्टैटिक। ओके, समझ में आया? यस और नो? एनी कंफ्यूजन? समझ में आया किस लिए स्टैटिक हो रहा है? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज सेकंड, नेक्स्ट टाइप। सो नेक्स्ट टाइप में क्या होगा? दैट इज पॉइंट नंबर 2, causal and non causal system। causal and non causal system। नाउ ये causal और non causal क्या होता है? एनी आइडिया? एनी आइडिया? causal and non causal system।
causal and non-causal system. Any idea? Any idea? Anyone? Any idea? Causal or non-causal system? Anyone from your end? Have you any idea regarding causal and non-causal system? Anyone has any idea? Causal or non-causal system? Causal means the input depends upon the present and past, and non-causal means it depends upon the future. That is the system. ठीक है, गुड. सो देखो, कॉजल और नॉन कॉजल, ये दोनों का डेफिनेशन हम लोग पढ़े हैं सिग्नल में. दैट इज कॉजल एंड नॉन कॉजल सिग्नल. ठीक है, तो कॉजल और नॉन कॉजल जब सिग्नल होगा, दैट इज कॉजल that is causal and non-causal सिग्नल जब होगा, लिसन वेरी केयरफुली. हाँ, ये जब सिग्नल होगा, देन क्या हो रहा है? इफ n लेस देन 0 में वैल्यू 0 है, वैल्यू 0 ऑफ x ऑफ n, दैट मीन्स पास्ट वैल्यू पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा है. पास्ट जितना भी वैल्यू है वो 0 है n लेस देन 0 में. ठीक है, वैल्यू 0 है, दैट मीन्स x ऑफ n equal to 0 at n less than 0, then it is known as causal signal. And non-causal, if this is not less than 0, then it is known as non-causal signal. That means non-causal signal is dependent on the past, present and future value, but causal signal depends only on the present and future value. वही चीज अगर हम सिस्टम में अप्लाई करेंगे तो सिस्टम में इसका उल्टा हो जाएगा. दैट इज अ सिस्टम इज सेड टू बी कॉजल. मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं. ठीक है, a system is said to be causal if the output of the system at any time depends only on the present and past value of the input signal, then this system can be known as causal system. ये चीज को अच्छे से याद रखना. ठीक है, तो इसको अगर हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि तुम लोगों को समझने में आसानी होगा. दैट इज depends only on present and past value. ठीक है, ये जो चीज है इसको याद रखना. दिस इज द वेरी वाइटल पॉइंट. और यही चीज तुम्हें कॉजल नॉन कॉजल सिस्टम को कॉजल एंड नॉन कॉजल सिग्नल के साथ अलग कर रहा है. दैट इज कॉजल सिग्नल में हम लोग क्या देख रहे थे? n लेस देन 0 में उसका वैल्यू तुम्हारा 0 हो रहा है.
So that means that it doesn't depend on the past value in case of signal, but in case of system, the value output value totally depends on the present and past value of the signal. Okay, so this is the causal system. And if not, or I can say, oh, or I can say non-causal system. Non-causal system. Non-causal system depends. So before non-causal, output of non-causal system depends on किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है? Past, present, and future. Or you can say if the output of a system depends on future input. So past present को लेकर हमको कोई दिक्कत नहीं है, मेरा फ्यूचर इनपुट, then the system is called non-causal system. So this is the basic difference of causal system and non-causal system. ठीक है? So मैं तुम लोगों का सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, दैट इज सो फ्यूचर के साथ ही तुम्हारा आ जाएगा प्रेजेंट और पास्ट. यहाँ पे लिखो प्रेजेंट प्लस पास्ट ऑल्सो. ठीक है? सो प्रेजेंट और पास्ट के ऊपर. ठीक है? ये भी इसका स्पेशल क्राइटेरिया, फ्यूचर के साथ प्रेजेंट और पास्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है. सो आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. मैं फोल्ड कर रहा हूं एक फिर से. ठीक है? So I am giving y of n equal to x of n square. ध्यान से इक्वेशन को देखना. ठीक है? ये कॉजल है या नॉन कॉजल है? कॉजल और नॉन कॉजल. इक्वेशन को ध्यान से देखना. लुक एट दैट इक्वेशन वेरी केयरफुली. कोई आंसर नहीं दे पाया? क्या होगा ये इक्वेशन? कॉजल या नॉन कॉजल? व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशन? मैं एक बार क्वेश्चन फिर से लिख ले रहा हूं. ठीक है? बोलो कॉजल है या नॉन कॉजल है? एक्स y of n इक्वल टू x of n स्क्वायर. ये कॉजल है या नॉन कॉजल है? कहां पे जाएगा? कहां पे आएगा? कॉजल या नॉन कॉजल? एनी आइडिया? कॉजल या नॉन कॉजल?
ये कॉजल सिग्नल सिस्टम है या नॉन कॉजल सिस्टम है? सिस्टम, नॉट सिग्नल। हाँ, सिस्टम। हाँ, कॉजल सिस्टम सर। कॉजल सिस्टम। और कोई कुछ कहना चाहेगा? अशोक? अशोक कुमार अयोध्या? हेलो हाँ बोलो, ये कॉजल है या नॉन कॉजल सर, है? ये नॉन कॉजल सिस्टम, ओके, नॉन कॉजल है, ये फ्यूचर। नॉन कॉजल है, नॉन कॉजल है। ओके, ठीक है। ओके, यू कैन अनम्यूट नाउ। ओके सर। Okay, so now let it check. So यहाँ पे दिया है y of n equal to x of n square. So suppose n equal to 0 at 0, present state is 0. So y of 0 equal to x of 0 square, that is x of 0. तो ये प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। n equal to 1, so y of 1 equal to x of 1 square, तो ये भी प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। n इक्वल टू 2, सो n इक्वल टू 2 में y ऑफ 2 इक्वल टू x ऑफ 2 स्क्वायर, दैट इज x ऑफ 4, तो ये हो गया फ्यूचर। 2 है प्रेजेंट स्टेट 2 है, बट मेरा आउटपुट x ऑफ 4 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फ्यूचर वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो पहला दो स्टेप में ये प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, थर्ड स्टेप से ये फ्यूचर वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो आई कैन से दिस इज नॉन कॉजल सिस्टम। ठीक है, नॉन कॉजल सिस्टम, नॉट कॉज, दिस इज नॉट अ कॉजल सिस्टम, दैट इज नॉन कॉजल सिस्टम। गॉट इट? समझ में आया या एनी डाउट? यस सर। ओके, नेक्स्ट इज, ये आज का लास्ट टॉपिक है, दैट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम। लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम। थर्ड वन, that is linear and non-linear system. So linear system और non-linear system, तो पहले इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। That means whenever linear and non-linear, जब भी ये दो टर्म आएगा तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, सुपर पोजिशन अप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स टाइम रिस्पेक्ट में उसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, लाइक सपोज इसका कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज वेटेड सम, लिख ही देता हूं, ठीक है, तुम लोगों को पढ़ने में आसानी होगा। the response of the system to a weighted sum of signals should be equal to the corresponding weighted sum of the signals, एंड यहां पे मेरा इनपुट क्या रहेगा, इनपुट किसको हम कैलकुलेट करेंगे,
that is weighted sum. ठीक है, weighted sum को input as well as output, that is individual weighted sum. ठीक है, so output, that means total output weighted sum. So weighted sum must be equal to individual weighted sum. So this signal can be known as, अगर ये हुआ, this condition को apply हो रहा है, then this signal is known as your linear signal, system. And if not, and if weighted sum not equal to individual weighted sum, then it is known as non-linear system. So मैं एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूं ताकि तुम लोगों को आसानी से समझ में आए. ठीक है, और इसका सिंटैक्स मैं पहले लिख ले रहा हूं. ठीक है, इसका सिंटैक्स है, मतलब कंडीशन है. सिंटैक्स मतलब सिंपली कंडीशन है T of A1 x1n plus A2 x2n must be equal to A1 T of x1n plus A2 T of x2n. ठीक है, सो ये इसका कंडीशन. तो ये इसका कंडीशन है. ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन. ये कंडीशन को याद रखना. नाउ आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल और आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू एन एग्जांपल. इस चीज को हम ऊपर रख देते हैं. ठीक है, नाउ giving you an example. क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देते हैं. ठीक है, ताकि तुम लोगों को आसान हो. दैट इज y of n इक्वल टू x स्क्वायर है. ठीक है, नाउ ये तुम्हारा लीनियर है या नॉन लीनियर, ये हम देखेंगे. लीनियर सिस्टम है या नॉन लीनियर सिस्टम है, इसको हम देखेंगे. सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस. solution. So suppose y of n is x square. This is the equation. Now suppose let it be two inputs, that is one is x1n and another one is x2n. So अगर x के बदले हम x1n लिखेंगे, that means ये जो इसका जो सिस्टम रिप्रेजेंटेशन है ये है तुम्हारा दिस लाइक दिस x of n एंड दिस इज यहाँ पे आ रहा है x स्क्वायर n. ठीक है, नाउ इन दोनों को अगर कंसीडर करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम का डायग्राम क्या होगा, दैट इज x1n x1 स्क्वायर n, दैट इज सिस्टम. ये सिस्टम है. नेक्स्ट इज x2n इधर है और ये सिस्टम है और यहाँ पे तुम्हारा x2 स्क्वायर है. सो अगर इसको हम yn से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कैन आई रिप्रेजेंट इट विथ
y1n and this with y2n. Okay, so now I am giving you, and this can be written as t of x1n, t of, sorry, x1n, t of x of n, and this is t of x1n, and this is t of x2n. That is transmit हो रहा है, transpose. Y is nothing but the transmission of y to n, x to n. Y2 is nothing but the transmission, that is output from x to n. So this is written. So इसको हम modify करके लिख सकते हैं t of x1n equal to x1 square n, equation number 1, t of x2n, इसको अच्छे से ध्यान दे के देखना, ठीक है, क्योंकि ये लिनियर नॉन लिनियर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एग्जाम में हमेशा तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो। ओके, मैं फिर से इक्वेशन को, पूरा इक्वेशन को दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि हर एक बार दिक्कत ना हो। यहाँ पे और एक बार ये इक्वेशन, टोटल इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, सो नाउ अब देखो मेरा इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। सो x of 1n सिस्टम में जा रहा है, दैट इज सिस्टम, और मुझे दे रहा है t of x1n। ठीक है, अगर सपोज इसमें कोई a फैक्टर ऐड होता है, दैट इज a1 ऐड करो, इंडिविजुअली यहाँ पे ऐड करो, दैट मीन्स x2n a2, एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, दैट इज a1 t1 tx1n एंड दिस इज a2 tx2n। ठीक है, तो ये हो जा रहा है तुम्हारा a1 t of x1n प्लस a2 t of x2n। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इक्वेशन। नाउ इंस्टेड ऑफ राइटिंग, instead of writing x1n t of x1n, I can put the value of x1 square n. So this can be written as, a1 x1n का स्क्वायर n प्लस a2 x2n का स्क्वायर। सो ये है मेरा एक पहला कि individually weighted sum, that is a of t x1n plus a1 a2 t x2n। ठीक है, ये टोटल, तो ये हो गया एक इक्वेशन, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू a1 x1 square n प्लस a2 x2 square n। सो ये हो गया मेरा एक इक्वेशन। सो दिस इज नथिंग बट, ये जो चीज है, ये लेफ्ट हैंड साइड इज नथिंग बट द दिस इक्वेशन। ठीक है, अब हमको देखना है कि राइट हैंड साइड में जो है क्यूमुलेटिव सम, ये क्यूमुलेटिव सम इक्वल टू इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसका वैल्यू ये निकल रहा है कि नहीं। अगर इक्वल वैल्यू निकला देन दिस इज लीनियर, अगर इक्वल वैल्यू नहीं निकला सो देन दिस इज नॉन लीनियर। सो अगेन आई एम गोइंग टू कॉपी दिस,
ठीक है ना। मैं ले रहा हूं x1 n1 अलग अलग सिग्नल को एक ही साथ क्यूमुलेटिव सम। यहाँ पे क्या है, क्यूमुलेटिव सम है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव सम है। ठीक है, सो a1 x1n प्लस a2 x2n, इसको एंटायरली मैं एक सिग्नल पकड़ रहा हूं। वहां पे इंडिविजुअली पकड़े थे, दो अलग अलग सिग्नल को ऐड किए थे। यहाँ पे इंडिविजुअली सिग्नल को मैं एक सिस्टम के थ्रू पुट कर रहा हूं। तो सिस्टम से बाहर मुझे क्या मिलेगा, टी ऑफ a1 x1n प्लस a2 x2n। दिस इज नथिंग बट t ऑफ, that is this is nothing but x of n का होल स्क्वायर, x of n स्क्वायर। तो यहाँ पे दिस इज सपोज x of n। ठीक है, सो नाउ इंडिविजुअल, पहले क्या हो रहा है, इंडिविजुअल दोनों अलग सिस्टम को भेज रहे थे, फिर उसको ऐड कर रहे थे। अब क्या हुआ, एक ही साथ इनपुट को हम ऐड कर लिए, फिर एक ही साथ भेज दिए। अब हमको देखना है इसका जो वैल्यू है इसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है ना, अभी इस लाइन को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको प्रूफ करना है। ठीक है, सो नाउ क्या होगा इसका वैल्यू, दैट इज यहां पे जो वैल्यू है दैट इज x ऑफ n, ये इसका एंटायर वैल्यू है। ठीक है, मुझे आउटपुट में मिल रहा है x स्क्वायर n, दैट मींस x स्क्वायर n। सो x स्क्वायर n के बदले हम क्या लिखेंगे, दिस पोर्शन को भेज देंगे। ठीक है, दिस पोर्शन को हम भेज देंगे। तो t ऑफ a1 x1n प्लस a2 x2n equal to, instead of xn I am writing a1 x1n plus a2 x2n उसका होल स्क्वायर, क्योंकि x ऑफ n का होल स्क्वायर है। इसको हम लिख सकते हैं ना, इस हिसाब से लिख सकते हैं, x ऑफ n का होल स्क्वायर। तो x ऑफ n के बदले मैं अभी यहां इसको बैठा रहा हूं। सो देखो यहां पे आया था ये दिस वन, दिस वन आया था, और ये नथिंग बट दिस इज। सो नाउ कंपेयर बोथ दिस इक्वेशन, कंपेयर बोथ दिस इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ए स्क्वायर एक्स वन एन स्क्वायर, यहाँ पे ए एक्स वन प्लस ए एक्स टू, वट एवर इट मे बी, दैट इज होल स्क्वायर, सो विच इज नॉट इक्वल। So I can say the right hand side is not equal to left hand side in this case. So I can say that is t of a1 x1n plus a2 x2n is not equal to a1 t of x1n plus a2 t of x2n. It is not equal to this. ठीक है, so since this condition is not satisfied, so I can say in this case y of n equal to x square n is non-linear system, non-linear system। ओके, सो अगेन मूव टू द क्वेश्चन। तो ये हो गया नॉन-लीनियर सिस्टम, नॉन-लीनियर सिस्टम, ये लीनियर सिस्टम नहीं है, सो नॉन-लीनियर सिस्टम। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? Is it clear to Yes, everyone? sir. Okay, so now any doubts or any questions regarding to today's topic? Regarding today's topic, any doubts and any queries? If not, then I will conclude the class. Yes or no?
यस अगर है तो मैं कंटिन्यू करूंगा, नो अगर है तो मैं कंक्लूड कर दूंगा क्लास. सो हैव यू एनी डाउट्स? Okay, thank you all. I'm going to conclude the class. Huh?